آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں JKL ڈائری. شروعات کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے. ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں. جموں کشمیر اور لداخ میں عالمی یوم یوگا کا دکھا جوش. نائب صدر CP رادھا کرشنن، LG منوج سنہا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ سمیت ہزاروں افراد نے کی شرکت. ریاستی وزیر سکینہ اتو نے PDP کو بنایا تنقید کا نشانہ. کہا آؤٹ سورسنگ بھرتیاں موجودہ نہیں، سابقہ حکومتوں کا ورثہ ہے. اپوزیشن نوجوانوں کو کر رہی ہے گمراہ. سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان جموں کشمیر میں منعقد ہوا نیٹ کا دوبارہ امتحان. طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ امتحان میں کی شرکت. اننت ناگ میں نیٹ امتحان سے قبل طالب علم کی مبینہ خودکشی. امتحان میں شرکت سے چند گھنٹے پہلے پیش آیا واقعہ. وجوہات کی تحقیقات جاری. تین جولائی سے شروع ہونے والی یاترا کے لیے سیکیورٹی سخت. یاتریوں کی سہولت کے تمام انتظامات مکمل. پٹن میں شام شفقت کا انعقاد. فوج اور عوام کے درمیان رشتوں کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش. 30RR کے زیر اہتمام ثقافتی پروگرام میں عوام کی بھرپور شرکت. اور اب خبروں کی تفصیل. جموں کشمیر میں آج عالمی یوم یوگا نہایت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں کئی تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جھیل ڈل کے کنارے سری نگر میں سب سے بڑی تقریب منعقد کی گئی. اس تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر تعلیم سکینہ اتو نے شرکت کی. اسکولی بچوں کی ایک بڑی تعداد اور مقامی باشندوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوگا کو دنیا کو جوڑنے والی ایک طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صحت مند اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے. اور لیفٹ ہینڈ کو سیدھا. میں اس پوتر دن پر جموں کشمیر کے ہر ناگرک کے اتم سواستھ کی کامنا بھی کرتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس ورس انترراشٹریہ یوگا دیوس کا جو تھیم ہے یوگا فار ہیلدی ایجنگ، میں سمجھتا ہوں یہ کیول ایک تھیم نہیں بلکہ جیون جینے کی ایک ایسی درشٹی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ عمر بڑھنا سوابھاوک ہے. نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے آج لیہ لداخ میں منعقدہ بین الاقوامی یوگا کی تقریبات میں شرکت کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ایک صحت مند، خوشحال اور پرامن معاشرے کے لیے یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. عالمی یوم یوگا کے موقع پر آج جموں میں ایک خصوصی یوگا سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر مملکت برائے PMO ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے شرکت کی. اس تقریب میں BJP کے لوک سبھا رکن پارلیمنٹ، سینئر رہنما رویندر رینا اور اعلیٰ بیوروکریٹس نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا. اس موقع پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں یوگا آج ایک عالمی تحریک بن چکا ہے. اور جیسا ہم نے ابھی سنا پردھان منتری کا سمبودھن، اس کے بعد اس کے اپرانت سب نے اکٹھے یوگ بھی کیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ورش یوگ کی تھیم ہے یوگا فار ہیلدی ایجنگ. پردھان منتری نے بڑے وستار سے ہمیں اس تھیم کا بھاوارتھ بھی سمجھایا اور آپ کو. تو ناظرین، جموں کشمیر اور لداخ کے مختلف علاقوں میں آج عالمی یوم یوگا کے موقع پر خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا. اس پر نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے رخ کریں گے کچھ دیگر اہم خبروں کی طرف. جموں کشمیر کے وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج حزب اختلاف جماعتوں بالخصوص PDP کی جانب سے آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بھرتیوں پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اسے سابقہ حکومتوں کا ورثہ قرار دیا. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ حکومت نے آؤٹ سورسنگ کا نظام شروع نہیں کیا، بلکہ وہ مستقل اور شفاف ملازمتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. وزیر تعلیم نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ اپنے دور حکومت کے اسکینڈلز کو چھپانے کے لیے بے روزگار نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے. کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے آؤٹ سورس میں؟ سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں، آؤٹ سورس اس سرکار نے نہیں بنایا. میں تو خود چاہتی ہوں، میں ابھی جب دلی گئی تھی میں نے آنریبل
यूनियन मिनिस्टर साहब से बात की है। मैंने कहा ये आउटसोर्स से कोई क्वालिटी हमें मिलती नहीं है, इससे बेटर है कि अगर आप परमानेंट लगाए, 500 ही लगाए, 1000 ही लगाए, उसके लिए हमें पैसा दे। एक तो बच्चों को रोजगार मिल सकता है और थ्रू मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी आज नीट का दोबारा इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इस सिलसिले में कश्मीर वादी के मुख्तलिफ मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तलबा अगरचे गुज़िश्ता पेपर लीक स्कैंडल से मायूस थे, ताहम वो इस इम्तिहान में पूरे जोश व खरोश के साथ शामिल हुए। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि इम्तिहान के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए थे। जो भी तैयारियां करनी थी वो हमने ऑलरेडी कर दी हैं, और जहां जहां ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, जो कोचिंग सेंटर या जो भी सेंटर जिनको मुकर्रर किया गया है इन एग्जामिनेशन के लिए, वहां एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हर एक तैयारी की है ताकि बच्चों। नीट इम्तिहान से चंद घंटे कबल ज़िला अनंतनाग के नंबल इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुफीज़ फैयाज शेख नामी एक तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। वाज़ेह है कि वाक़या नीट इम्तिहान से चंद घंटे कबल पेश आया और मज़कूरा नौजवान को आज नीट के इम्तिहान में शमूलियत करनी थी। ताहम फ़िलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया तालिब इल्म ने इम्तिहानी दबाव के बाइस ये इंतहाई सख्त कदम उठाया या इसके पीछे कोई ज़ाती वजूहात कार फरमा थी। नीट के इम्तिहानात मुल्क भर के साथ साथ ज़िला अनंतनाग में भी पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुए। इंतजामिया की जानिब से मुनासिब सहूलत और हिफाजती इंतजाम फराहम किए गए थे। इम्तिहान में शरीक तलबा उनके वालिदैन ने माजी में सामने आने वाले मुबैना बेज़ाब्तियों और धांधलियों पर अफसोस का इजहार किया। फ्रस्ट्रेशन है, माँ बाप बोलता है बच्चा कुछ फेल करेगा। तो आपको मालूम है परसों भी दिल्ली में एक ने खुदकुशी की, लेकिन हमें बहुत दुख हो गया। जो ये चोरी हो गई है ये गवर्नमेंट की कमजोरी है, हमारी नहीं है। देखो कल एक बच्चा है उसका एग्जाम लिखा था अबू धाबी में, ये शर्म की बात है ना, तो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गवर्नमेंट से 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों ने तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली। यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल कायम किया गया है। यात्रियों की सहूलत के लिए रहाइश, तिब्बी इमदाद, पीने के पानी, बिजली और सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। इस हवाले से जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और नीम फौजी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। इस बार देखा गया है कि जिनके खदमात हासिल किए जा रहे हैं उनके लिए खुसूसी कार्ड जो है उनकी तश्कील जो है अमल में लाई गई है, ताकि 3 जुलाई से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा से कबल जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए ताकि यात्रियों के महफूज और पुरअमन आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस एहलकार निजी गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मुश्तबा नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के नवयुग टनल के मुकाम पर खड़े हैं, और आपको बता दूं कि ये वो शाहराह है जहां से पवित्र अमरनाथ यात्रा जो है इसी टनल से गुजरती है। चाहे बालतल की ओर बाबा बर्फानी का दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं या पहलगाम की श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए आते हैं, इसी स्पॉट से वो गुजरते हैं नवयुग टनल के मुकाम। डोडा जिले के बाबोर गांव के मक्कीनों ने जिला इंतजामिया और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। डोडा बाबोर रोड को कई घंटों तक ब्लॉक करके ट्रैफिक की नकलो हरकत में खलल डाला। एहतजाज करने वाले मक्कीनों के मुताबिक महकमा बिजली ने मुबैना तौर पर चंद सार्फिन की बिजली के बिलों की वजह से पूरे गाँव को बिजली से महरूम कर दिया। इस कार्रवाई से मुकामी लोगों में गुस्सा देखा गया। अगर 2-4 घरों को किराया बकाया था या है तो मुलाजमीन को चाहिए था या बिजली वालों को चाहिए था कि उनसे किराया वसूल करें, न कि पूरे गांव को अंधेरे में डाल के रखें। यहां से यह पता चलता है कि यहां की सरकार जो पहले लोगों से वादा करती है, बाद में किस तरह लोगों के वो वादा जो है वादा खिलाफी करती है। बडगाम के खान साहब में हज़रत सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद हुई, जिनमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत करके हाज़िरी दी और दुआओं का एहतमाम किया। मालूम है कि जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद है ये ज़ियारत सैयद स्वालिया खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की है, और 550 साल आज तो गुजर गए
और ये उर्स मुबारक जो आज 21 जून का 24 जून तक चलेगा। ये साल महकमा ज़राअत करगिल की जानिब से द्रास के टूरिस्ट डाक बंगला के कॉन्फ्रेंस हॉल में पीएम किसान उत्सव दिवस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काचो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म हिंद की जानिब से मगरबी बंगाल के ज़िला हुगली के तारकेश्वर से साल 2026 के लिए पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी किए जाने के मौके पर मुनक़िद किया गया। आज के तकरीब में जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर किसान उत्सव दिवस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे भी इस महफिल में शरीक होने का मौका दिया। इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि द्रास को डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद एग्रीकल्चर का पहला इवेंट हुआ है, पहले एक ऐसे गैदरिंग हुई है जिसमें बहुत सारे लोग तशरीफ लाए हुए थे। सैयद हसन मंतकी रिसर्च एकेडमी की जानिब से अवंतीपुरा में कश्मीर में फ़िरका वाराना और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ में खानकाहों का किरदार के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार में मारूफ स्कॉलर, दानिश्वर और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। तो आज मोरखे 21 जून को सैयद हसन मंतकी रिसर्च एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक नेशनल सेमिनार बउनवान कश्मीर में फ़िरका वाराना और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ में खानकाहों का किरदार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में मुल्क भर के उलमा, स्कॉलर्स, सियासतदान, वकला हज़रात ने शिरकत की, जिनमें व्यापार मंडल भदरवा ने आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि शेर बाजार में कायम पार्क को हटाया जाए और एडीसी दफ्तर को ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला अदालत के सरना में नई इमारत मुंतकिल होने के बाद बाजार में कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई है और ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं। तो आज जुड़ने का मकसद था सबसे पहले शेरी बाज़ार के पार्क को पुरानी पोजीशन में लाया जाए, एडीसी और तहसील ऑफिस को वापस लाया जाए, जिससे शहर में ज़रा आमदोरफ्त बढ़ेगी और दुकानदारों का जो मसला वो हल होगा। भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें एसटी मोर्चा के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद कबायली बिरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौज करना था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के इश्तराक से महकमे समाजी बहबूद की जानिब से तहसील शंगस में खुसूसी अफराद के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तकरीबन 109 मुस्तहिक़ खुसूसी अफराद में मुख्तलिफ इमदादी व मुआवनती आलात तक़सीम किए गए। 15 से लेकर आज इख्तिताम 20 को ये शांगस में हुआ। तो हर किसी तहसील में प्रोस्टिट्यूट के डिस्ट्रीब्यूशन कैंप जो हमारे खुसूसी अफराद हैं उनके बीच में मुनक़्क़द किया गया और मुद्दा और मकसद मंशूर यही है कि जो हमारे खुसूसी अफराद हैं इनको बाइख्तियार बाविकार बनाया जाए। इंसानियत की खिदमत और मुश्किल वक्त में इंसानी जानों को बचाने के अजीम मकसद के तहत अंजुमन जाफरिया पुंछ के नौजवानों और रज़ाकारों की जानिब से एक रोज़ा खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप ज़िला अस्पताल पुंछ में लगाया गया जिसमें मुकामी नौजवानों, समाजी कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरगूब फाउंडेशन और अदबी मरकज़ कमराज के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बंकुट में मारूफ कश्मीरी अदीब, शायर और दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर मरगूब बानेहाली की याद में एक अदबी व तालीमी प्रोग्राम के साथ ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुकर्ररीन ने प्रोफेसर मरगूब बानेहाली की कश्मीरी ज़बान व अदब, तालीम और सकाफ़त के फ़रोग़ में गिरा क़द्र खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया। किश्तवाड़ में हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स तुज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद दुरूद व अस्कार की मजालिस सजाई गई। नमाज ज़ोहर के बाद वक्फ बोर्ड की जानिब से तबरुकात की निशानदही की गई। बडगाम में आज 12वें बैनुल-अक़वामी योगा डे 2026 को भरपूर जोश और जज्बे और अवामी शिरकत के साथ मनाया गया। रवा साल के सरकारी मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा के तहत ज़िला बडगाम में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया।
جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں 3 محکمے ہیں جو خاص طور پہ یوگا کے حوالے سے کام کرتے ہیں. ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ آف آیوش ہے. ڈپارٹمنٹ آف آیوش کے پاس میں بھی ہمارے پورے ضلع بھر میں لگ بھگ 200-250 کے آس پاس ہماری انسٹرکٹرز ہیں. ہمارے پی ٹی آج بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر ادھمپور ضلع انتظامیہ نے محکمہ آیوش کے ساتھ مل کر سبھاش اسٹیڈیم میں مرکزی تقریب کا اہتمام کیا. ادھمپور کے MLA پون کمار گپتا نے بطور مہمان خصوصی اس میں شرکت کی. سبھی ادھمپور واسیوں کو جو ہے انٹرنیشنل ڈے آف یوگا جو ہے اس کی بدھائیاں ہیں اور شبھ کامنائیں ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے بھی ادھمپور کے سبھاش اسٹیڈیم میں جو ہے انٹرنیشنل ڈے آف یوگا کو جو ہے منایا. اور ضلع شوپیاں میں 12واں بین الاقوامی یوم یوگا جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. مرکزی تقریب منی سیکریٹریٹ شوپیاں میں منعقد ہوئی جہاں مختلف سرکاری محکموں، تعلیمی اداروں اور عوام نے یوگا سیشن میں شرکت کی. کٹھوعہ میں بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر ضلع انتظامیہ اور محکمہ آیوش کے اشتراک سے اسپورٹس اسٹیڈیم میں ایک شاندار یوگا پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں سرکاری افسران، ملازمین، طلباء، کھلاڑیوں اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. انٹرنیشنل یوگا ڈے پہ میسیج یہی رہے گا ہمارے کٹھوعہ واسیوں کو، دیش واسیوں کو، اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. یوگا جو ہے ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے. بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر ڈاگیر گاؤں میں ایک خصوصی یوگا سیشن کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں فوجی جوانوں، مقامی دیہاتیوں، نوجوانوں اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور یوگا کے ذریعے صحت مند طرز زندگی اپنانے کا پیغام دیا. تو آج یہاں بھارتیہ سینا دوارا انٹرنیشنل یوگا دیوس بنایا گیا. تو جہاں پہ بہت سارے آئے تھے یوگا کرنے کے لیے. بھارتیہ سینا نے بیچ میں وہ بھی کھڑے تھے. تو عالمی یوم یوگا کے موقع پر CRPF کی 33ویں بٹالین نے بھدرواہ میں خصوصی یوگا پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام میں CRPF کے جوانوں اور افسران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مختلف یوگا آسنوں اور سانس کی مشقوں کا مظاہرہ کیا. پیس یوگ دیوس کے اپلکش میں 33 بٹالین CRPF کی اور سے سمست دیش واسیوں کو ہاردک شبھ کامنائیں تتھا کریں یوگ رہیں نیروگ کا جو یہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کولگام نے محکمہ آیوش اور عدلیہ کے تعاون سے کورٹ کمپلیکس میں یوگا ڈے منایا. چیئرمین DLSA جناب اعجاز احمد خان کی صدارت میں ہونے والے اس پروگرام میں ججز، وکلاء اور عملے نے شرکت کی. آج جو یہ 21 جون 2026 ہے، یہ ہر جگہ ایک بطور انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کولگام میں ہر تعلقہ میں، ہر منصف کورٹ میں یہ پروگرام آج منایا گیا. نوشہرہ میں 12واں بین الاقوامی یوم یوگا جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. ضلع انتظامیہ راجوری اور اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار آرٹس جموں کشمیر کے اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام میں انتظامی افسران، فوجی حکام، نوجوانوں اور مقامی باشندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اندرا گاندھی نیشنل سینٹر آف آرٹس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن راجوری اور انڈین آرمی کے جوائنٹ کولیبریشن سے آج کا انترراشٹریہ یوگ دیوس کا آج سیلیبریشن کیا گیا. اور یہاں کے سبھی سماج کے ورگوں، چھوٹے بچوں، یواؤں، مہیلائیں اور سماج کے سبھی ورگوں کے ساتھ آج یہاں پہ ماس یوگ ایکسرسائز ہوئی. گلمرگ کے حسین وادیوں میں آج عالمی یوم یوگا بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر مختلف اسکولوں کے طلباء، سرکاری افسران اور مقامی لوگوں نے اجتماعی یوگا سیشن میں شرکت کی. شرکاء نے مختلف یوگا آسن انجام دے کر صحت مند طرز زندگی اور ذہنی سکون کے پیغام کو عام کیا. 2026 آپ نے دیکھا کہ گلمرگ کی حسین وادی میں ایڈمنسٹریشن اور یہاں کے اسکولی بچوں نے مل کے یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا. اور یوگا ڈے سیلیبریٹ کرنے کا جو مقصد ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کا یہ بڑی سالوں سے ایک مشن شروع ہوا ہے. بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر پلنوالا سیکٹر میں بھارتی فوج اور کھوڑ انتظامیہ کے اشتراک سے ایک خصوصی یوگا پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر بھارتی فوج کے افسران، SDM کھوڑ، انتظامی حکام اور مختلف محکموں کے ملازمین موجود تھے. انٹرنیشنل یوگا دیوس ہے. آج یہاں پہ کھوڑ سب ڈویژن کے جو ہمارا ایک بارڈر ولیج ہے بالکل پاکستان کے 0 لائن پہ، آج ہم نے یہ وینیو چنا ہے.
जिला इंतजामिया द्रास ने आज हेलीपैड खंडियाल द्रास में बैनुल-अक़वामी योम योगा नहायत जोश व खरोश के साथ मनाया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काचू, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्रास इश्तियाक काचू और जिला इंतजामिया के अफसरान व एहलकारों के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के अमले और तलबा और साबिक फौजी और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने शिरकत की। जिला रामबन में 12वां बैनुल-अक़वामी योम योगा जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा के मौजू पर मुनक़िदा तकरीब में अवाम, नौजवान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सरकारी अफसरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कि आपको पता है कि आज 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर मनाया जाता है, तो उस सिलसिले में बाकी जगहों के साथ हमारे यहाँ रामबन में भी एक कसीर तादाद में लोग आए और यहाँ योगा का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। 84 बटालियन CRPF ने रामबन में बैनुल-अक़वामी योम योगा मनाया। इस मौके पर CRPF एहलकारों और दीगर शुरका ने योगा सेशन में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ आसनों की मशक की। मुकर्ररीन ने योगा को सेहतमंद ज़िंदगी, जहनी सुकून और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए मुफीद करार दिया। भारतीय जनता पार्टी करगिल ने योगा डे का शानदार इनेकाद किया। वहीं करगिल की मीडिया ने आज जिला इंतजामिया की तरफ से मुनक़िदा योगा तकरीब का बाइकआउट किया क्योंकि करगिल इंतजामिया ने इनको मदऊ नहीं किया था। बैनुल-अक़वामी योगा डे किश्तवाड़ के तारीखी चौगान ग्राउंड में मुनक़िद किया गया। योगा डे की तकरीबात में MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार ने हिस्सा लिया और जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी तंदुरुस्ती और मजबूती सेहत को फ़रोग़ देने में योगा के किरदार पर रोशनी डाली। पुलवामा में योगा का बैनुल-अक़वामी दिन जोश व खरोश के साथ मनाया गया। SSP पुलवामा ने इसमें शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए योगा की अहमियत पर जोर दिया, जबकि अवंतीपुरा, तराल स्कूलों, कॉलेजों और सेहत के इदारों में भी इसी तरह के तकरीबात का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल योगा डे है, लेकिन योगा को अपने डेली रूटीन में लाएं फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। और इस बार का जो प्रोग्राम था, यहाँ ज़िला पुलवामा से भी सभी स्टेक होल्डर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था उसके साथ भाई जुड़े और ऑनरेबल PM का मैसेज भी सुना। नौशहरा में पतंजलि योग समिति जम्मू कश्मीर के रियासती इंचार्ज रविचंद की क़यादत में राम भवन में 12वां बैनुल-अक़वामी योम योगा बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। प्रोग्राम में योगा से वाबस्ता अफराद, समाजी कारकुनान और मुकामी शहरियों ने शिरकत की। वादी कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में जहां फ़ौज कलीदी किरदार अदा कर रही है, वहीं अवाम के साथ नज़दीकी बढ़ाने के लिए रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में पटन के इलाके में 30RR की जानिब से मुनक़िदा शाम शफ़क़त प्रोग्राम ने अवाम के दिल जीत लिए। देखिए पटन से आशिक तिलगामी और निसान यत्तू की ये ख़ास रिपोर्ट। तो हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। शुमाली कश्मीर के पटन में इंडियन आर्मी और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के इश्तराक से शाम शफ़क़त 2026 का इनेकाद किया गया। जोरावर हॉल में मुनक़िदा इस सकाफ़ती मेले का बुनियादी मकसद मुल्क के सकाफ़ती विरसे को उजागर करना और कौमी यकजहती का पैगाम आम करना था। इस तकरीब में मुकामी नौजवानों और स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मेले के हवाले से इन बच्चों ने अपने तासुरात कुछ यूँ बयान किए। इंडियन आर्मी के थ्रू प्रोग्राम था, हम चाहते कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और हमने बहुत एंजॉय भी किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, कल्चरल था, हमने बहुत कुछ सीखा भी। इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम किया था, कल्चरल प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में या हमारे सराउंडिंग में भी ये प्रोग्राम होने चाहिए और हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इस तकरीब में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर और उड़ीसा के फनकारों ने शिरकत की। इन्होंने अपने रिवायती रक़्स और मौसीकी के जरिए हिंदुस्तान के तहजीबी हम आहंगी की बेहतरीन अक्कासी की। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में अपनी सकाफ़ती जड़ों से आगाही और बाहमी एहतराम के जज्बे को बेदार करना था। पठानकोट से लेके लेह लद्दाख तक जाएंगे सिंध यात्रा में, तो 70-80 के करीब आर्टिस्ट हमारे साथ। हम
अपना यहाँ पे अपना फोक डांस, लुड्डी और जहाँ के कल्चर को देखने आए हैं, कल्चर एक्सचेंज। हम यहाँ पे अपने डांस को करेंगे और इधर के अपने डांस को करेंगे। हम इतने आर्मी वालों का शुक्रगुजार करते हैं कि हमें इधर बुलाया और बहुत अच्छे से स्वागत भी किया और हमें बहुत अच्छा प्रस्तुति अभी देने का। और अभी हमने बहुत सारे आर्टिस्ट आए, अलग अलग राज्यों से आए हैं। जैसे कल्चर एक्सचेंज होता है महाराष्ट्र का, जैसे हमने प्रेजेंट किया, वैसे इधर कश्मीर के है, पंजाब के है, गुजरात के है, राजस्थान के है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया। शुरा का पुरजोश रद्दमल इस बात की अक्कासी करता है कि ऐसे इक़दाम खित्ते में सकाफ़ती इंज़माम और हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी के लिए पटन से आशिक तिलगामी और निसार यत्तू की रिपोर्ट।